just a contract offer. Do you get it? More on that in other videos. It's just a contract offer. That's why they say we may so many times. Isn't this cool though? When I saw this, this was crazy. We made an error. So let me show you our response. This is a private communication between the parties. Notice to agent is notice to principal. Notice to principal is notice to agent. Notice of conditional acceptance. This is our client's address, care of the notary's name and the notary's address. Sorry, this is our client's name, care of the notary's name and the notary's address. Registered or certified mail. Nunc pro tunc, because they didn't respond within 10 days. So you want to, nunc pro tunc is Latin for now, for, then. Now, for, then. Okay? So you can simply, if you don't, a contract takes 72 hours. 3 days extra for the mail to arrive, 3 days extra for the mail to come back, 1 day for a Sunday where there's no mail. So a contract takes 10 days. If you don't respond within 10 days, you accept the previous letter. Now, this client hadn't responded because they hadn't gotten to me in time. And so what we do is we just write nunc pro tunc to month, number, year. And therefore, the letter has the legal force and effect of being responded to within that 3-day time frame, or within that, you want to make sure that this date is within 10 days from when you receive the previous letter. Okay? And we're sending it to the head honcho, the chief executive officer, so that nobody can say, this didn't get to the right person. We're just sending it to the head honcho. Or this person doesn't work here anymore, or you sent it to someone in a different agency. We just send it to the head guy most of the time. That's what we do. And you can CC the person, if there's a name that was sent, it's good to send to multiple people. So our response that helped our client succeed. I am in receipt of your letter dated August 15, 2011, a copy of which is attached herewith. In response to your letter, I'm conditionally accepting your offer to make. जी, ये वो पॉइंट है जो बताना चाह रहा था आपको. ठीक है, ये वो पॉइंट है, कंडीशनल एक्सेप्टिंग योर ऑफर टू बी लायबल फॉर यूआर डिपार्टमेंट एरर फॉर अमाउंट ऑफ $2000 ऑफ एनी अमाउंट अपॉन योर बुक. जी, बात समझ में आई है नहीं आई? बात समझ में आई है नहीं आई? जी, कोई जवाब देगा? हाँ या ना? इसमें क्या है? कंडीशनल एक्सेप्टेंस. क्लियर है ये? अरे कोई तो हाथ बात तो हिला दो, कम से कम कुछ तो बताओ. आई समझ. देखिए, इसमें क्या है? कंडीशनल एक्सेप्टेंस है इसके अंदर. सही है. उसके अंदर पहली बात ये कि कॉन्ट्रैक्ट हम करने जा रहे हैं, वी में हम ये करेंगे, वी में. सही है. जैसे आप सपने दिखाते हैं ना, अब बॉयज जो है सपने दिखाने में माहिर होते हैं. तो किसी को सपने दिखाते हैं तो कहते हैं हम यूँ करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम यहाँ घूमेंगे, हम यहाँ दौड़ लगाएंगे. तो तमाम चीज़ें जो ये बच्चे जो सोच रहे होते हैं, जो बातें कर रहे होते हैं, वो वी में वाली बात है. हम ये करेंगे. इसमें और कर लेने में जमीन आसमान का फर्क है. सही. तो आपके पास जो पहली जो चीज बताई है इसके अंदर, वी मे के माने वी आर अपॉन एग्रीमेंट, वी आर कमिंग ऑन एन एग्रीमेंट. ओके. और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये एग्रीमेंट को कंडीशनली एक्सेप्ट कर रहे हैं. आई एम कंडीशनली एक्सेप्टिंग योर ऑफर टू बी लायबल फॉर एन योर डिपार्टमेंट एरर फॉर द अमाउंट ऑफ $1 और ऑफ एनी अकाउंट अपॉन प्रूफ ऑफ क्लेम्स डेट. बात समझ में आ गई? अब समझ में आई बात नहीं आई?
तो बोल दो। Excuse me, excuse me, sir. Can you repeat the concept of conditional acceptance? देखिए एक चीज है, आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपने एग्रीमेंट के अंदर एक पढ़े लिखे आदमी की तरह शराफत के साथ आपने कह दिया कि हाँ मैं आपके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आपने कंडीशनल एग्रीमेंट को आपने वर्ड यूज नहीं किया, बल्कि आपने कहा कि हमारा जो एग्रीमेंट है मैं उसे एक्सेप्ट करूँ। तो उस एग्रीमेंट के अंदर फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, तमाम चीजें जो हैं इनके माने, इन तमाम चीजों के माने, ये तमाम चीजें वैसे नहीं जैसा मान रहे हैं इसको। ठीक है, तो कहने का मेरा मकसद बहुत सिंपल सा है। इसका मतलब ये कि ये थोड़ा कि आपके पास जो आप बातें बता रहे हैं वो उसके अंदर कंडीशन है। ठीक है, तो एक्सेप्ट कंडीशनल एक्सेप्टिंग के माने से बहुत सिंपल सी बात है। इसके माने ये कि आप जो एग्रीमेंट को साइन करने जा रहे हैं और उसके अंदर ये बता रहे हैं कि मैं इस कंडीशनली एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ अगर आप मेरे यही काम करेंगे और इन चीज़ों का मुझे प्रूफ देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, या आपके पास ठेकेदारों के साथ आप कर रहे होते हैं बिजनेस। ठेकेदारों से कहते हैं कि भाई आप जो है, पहली बात ये पेपर लिया है, स्टैम्प पेपर लिया है, स्टैम्प पेपर के अंदर ठेकेदारों को कहते हैं कि इतने टाइम के अंदर आप क्या करेंगे, 25% पैसे, 25% अमाउंट हम आपको देंगे। 25% अमाउंट के अंदर आप इतने दिनों के अंदर इतनी चीज़ों तक पहुँचा देंगे हमें। यानी कि आपने 25% मुझे पैसे दिए, फॉर एग्जाम्पल हमने 2.5 लाख रुपए दिए। 2.5 लाख रुपए के अंदर हमने कहा कि ज़मीन की जो है तमाम की तमाम बुनियादें डालेंगे आप, पानी का टैंक बनाएंगे, जो उसकी जो क्या कहते हैं पिलर्स है उसको खड़ा कर देंगे आप। सही, और आप जो है फर्स्ट फ्लोर की छत की तरफ आप चले जाएंगे, यानी फर्स्ट फ्लोर की छत डालने की तरफ आप चले जाएंगे। सही, तो आप फिर हमें बताएंगे और इस डेट तक आपने ये काम कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया उसको कि भाई आपने 1 हफ्ते के अंदर सारे काम करना। अब वो 1 हफ्ते के मैं एक वैसे बहुत कम टाइम दे रहा हूँ, मैं 1 हफ्ते नहीं होता, तकरीबन छत को पानी में यानी कि बुनियादों को पानी देना और कॉन्क्रीट करना टाइम लगता है। सही, तो कहने का मतलब ये है कि लेट से आपने 10 डेज का टाइम दिया, 10 डेज के टाइम के अंदर वो चीज़ें उसको बना दी। सही, तो आप उसके बाद आप सेकंड फेज के अंदर जाएंगे। सेकंड फेज के अंदर कहेंगे कि हम आपको 25% पैसा और दे रहे हैं अगर आप ये ग्राउंड फ्लोर की छत डाल दें। सही, और उसके बाद सेकंड फ्लोर की छत डालने के करीब आ जाएं आप, और जो दीवारें हैं उन पर सफेद प्लास्टर हो जाए, और बढ़ई के लिए जो है दरवाज़ा लगाने का जिसे बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, दरवाज़ा लगाते हैं तो क्या कहते हैं यार, सही है, तो आपके पास जो है वो खिड़कियां दरवाजों की जो है फर्नीचर फिक्सचर्स जो है वो लगा दें उसमें। तो हम आपको जो है 2.5 लाख रुपये और दे दें, वो सब लिखत पढ़त के साथ। तो वो अब जो है वो कहीं भागेगा नहीं, जो लॉयर क्या नाम है, ठेकेदार है, कहीं नहीं जाएगा। आप क्यों उसको डेटी वाला टाइम पता है। अच्छा, बाकी क्या होगा आपके पास, आप उसको कहेंगे कि बाकी जो है आपका 50% पेमेंट ये आप तो हमें हमारे घर हवाले करेंगे, फर्श डालने के बाद, प्लास्टर कर देने के बाद, छत का प्लास्टर कर देने के बाद, सही है, वॉशरूम बनाने के बाद, ये सब चीज़ें बनाने के बाद, जब सब चीज़ें कर ले, पानी पानी डालने के बाद, ये सब चीज़ें उन्हें जब हमें कब्जा देंगे तो हम आपको 50% जो है जब हम पैसा देंगे, आप इस पर कंडीशनली एग्री हैं या नहीं। अगर उस पर कंडीशन एग्री है वो, तो अब उसको पता है उसको कितने बंदे चलाने हैं, कौन कौन से बंदे काम करेंगे, दिन के अंदर ये काम निपटा देंगे। बात समझ में आएगी? तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस कहलाती है। और कंडीशनल एक्सेप्टेंस का मतलब ये कि ये टाइम अगर लेट से ये काम बंदा नहीं कर सका, फॉर इंस्टेंस जेन्युइन रीजन थी, जेन्युइन रीजन के माने हड़तालें थी या कोई मसला था या कोरोना था, तो इन दैट केस जो है आप भी इंसान हैं, आप भी जो है कुछ चीज़ों पर थोड़ा रहम करते हैं कि यार चलो इसको हम डे बढ़ा देते हैं म्यूचुअल कंसेंसस से,
ऐसा भी कर देते, वरना ये कि कोई ऐसा मसला नहीं था और इसने आपका टाइम ज़ाया किया है, तो आप ये कहते हैं कि एवरी डे, हर गुजरते दिन के साथ आपके 10,000 रुपये पेनल्टी के ऐड होंगे, तो हम काट के देंगे आपको। इसका मतलब ये कि हम जो आपका अमाउंट देंगे तो 10,000 रुपीज़ पर डे डिडक्ट करके देंगे कि आपने हमारा काम को स्लो किया। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं आई? बताइए, समझ में आ गई बात जी? हाँ बिल्कुल सही है, जबरदस्त। और कोई ऐसा समझ में आ गई तो सही बताया। अच्छा, अब ये डॉक्यूमेंट आप इसको सुन लें, डॉक्यूमेंट को सुनने के बाद हमको आगे लेके चलते To be liable for your department's error for the amount of $2,000 or of any amount upon proof of claim that, number one, you show me where we have a contract to which I become retroactively liable for a mistake or an error, like they said, we made an error, made by your department. Yeah, I'll pay this. Just show me where I have a contract saying that I would pay any mistake that you made. That's your fault. I receive, and number two, I conditionally accept your offer upon proof of your claim that I receive your department's documentation of accounting showing evidence of your loss. You just show me evidence of your loss, and that's so we need both of these things, and then we'll agree to pay it. So we're not arguing, we're not disagreeing, we're not opening up a dispute. We're conditionally accepting, which is way more powerful and keeps us in control and will ultimately lead to a success in this example and lots of other examples. You have 10 days from receipt of this conditional acceptance to respond on a point-by-point basis via sworn affidavit under your full commercial liability, signing under penalty of perjury that the facts contained therein are true, complete, correct, and not misleading. Mere declarations are an insufficient response. And that's what they do, is they respond. They did not respond under penalty of perjury. We'll go to the letter in a second. So therefore, they sent us an insufficient response. If an extension of time is needed to properly answer, please request it in writing. Failure to respond will be deemed agreement with the facts stated in the attached affidavit and an inability to prove your claim, thereby indicating your agreement to the facts stipulated herein enclosed commercial affidavit. This letter constitutes constructive notice to the recipient. Name the actual date. You don't backdate this part that you write. And then you write, any and all responses shall be directed to me via USPS certified or registered mail at the following address. Whatever your name is, John Smith, C/O, the notary's name, comma, notary public, the notary's address. Service in any other matter will be deemed defective on its face, meaning it's an insufficient or frivolous response if they send it to anyone other than the notary. The notary is witnessing the whole communication between them and us, and if needed, they can send evidence to a judge under notary seal, in camera, marked private, and the judge will rule in our favor every time without us ever having to go to court. Okay? Jurat. Or without us ever having to go into a court, a public courthouse. Because we're in court. Writing this letter back and forth to this agency is technically court. Look up the definition of court in Black's Law Dictionary. They give you a little homework assignment. Jurat. Subscribed and sworn or affirmed to me before on this first date of June 2012, whatever it is, by John Smith, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person who appeared before me, signature. And then the notary's going to put their stamp here. Alrighty, and then, actually, you do not need this in a conditional acceptance necessarily. You need this at the end of the affidavit, but it doesn't hurt to keep that in there. Affidavit of specific negative averment. The undersigned affiant, John Smith, refers hereinafter affiant, does solemnly affirm, declare, and state as follows.
Affiant is competent to state the matters set forth herein. Affiant has knowledge of the facts stated herein. All facts herein are true, complete, and correct, admissible as evidence, and if called upon as a witness, affiant will testify to their veracity. These 3 points are always going to be the same for any affidavit or negative averment affidavit. Now, a negative averment affidavit is very special because we're putting the proof on the other party, and it just works out in our favor a lot easier. There's no way of us, this is misnumbered, there's no way of us ever putting ourselves at risk for being in perjury. You know, if you sign an affidavit, you're putting your commercial liability on the line. But look how we word this. This is the whole point. Affiant has no knowledge of any existing contracts between the client and Vermont Agency of Human Services Department for Children and Families Economic Services Division, which holds the client retroactively liable for mistakes or जी बेटा, तो यहाँ पर जो उसको देख रहे हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इसके मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 10 दिन के अंदर अंदर इसको जवाब देना है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को समझ चुके हैं, सही है। और योर कमर्शियल लायबल साइनिंग under penalty of perjury that the facts contained therein are true, correct, complete and not misleading, सही है। देखिए कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो चीज में फंसाते थे ना, वो तो फंसाने के अंदर ये 4 पॉइंट पे फंसाते हैं कि हम ये समझे थे, तो इसका मतलब ये है अच्छा कि ये चीजें जो है वो ट्रू है, हाँ ट्रू है, करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, मगर इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट पे जब फैक्ट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि कुछ चीज़ों पे आप काम करना चाह रहे हैं तो इनकम्प्लीट है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी, मगर ये अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल में ये निकली, ठीक है, एंड नॉट मिसलीडिंग। और ये कि गुमराह कुन नहीं थी, मिसलीडिंग के माने गुमराह कुन नहीं थी। तमाम फैक्टर्स जो है इसके अंदर मैटर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग काम करेंगे अभी काम करेंगे, लगाएंगे। मैं भी ऑफ कर दूं, मैं क्लास तो काफी देर से ले रहा हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं कर देता हूँ, बाद में ले लूंगा क्लास, आप श्योर होगा ना? अच्छा बेटा, तो ये बताएं कि यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों के? सर ये जो लास्ट चीज आपने बताया यू हैव 10 days, इसका मतलब सर आप थोड़ा फिर से बता सकते? आपको ये कंडीशन देखें, छुट्टियां वगैरह मिलाकर, सही है, वैसे 3 दिन नहीं जाते, मगर आपने क्या किया, आपने हफ्ता इतवार मिलाकर और 5 दिन मिलाकर फिर 2 दिन मिलाकर तकरीबन 7 और 4 11 दिन हो गए। आपने इनको 10 डेज दिए और 10 डेज के अंदर आपने ये बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, ट्रू है, करेक्ट है एंड नॉट मिसलीडिंग है। क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जब आप इस चीज़ों को लेके जाते हैं तो उनका जो लॉयर होता है वो ये कहता है कि हम ये समझे, हमने ये जाना, हम ये समझे कि ऐसा हुआ, हम ये, तो उसको पतली गिरी से निकाल लेता है अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो जब ये डॉक्यूमेंट के अंदर हम चीज़ें लिखते थे ना, करेक्ट, ट्रू, करेक्ट, कंप्लीट एंड नॉट मिसलीडिंग, इसका मतलब उसको बचने का कोई चांस नहीं होता, सही है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वो साइन कर रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर? अरे बेटा बोल दो, क्या हो गया? बात समझ, sir, your voice was getting a little cut off, sir. दोबारा बोले। Your voice is getting a cut off, sir. बताओ। अच्छा, अब असल में मैं क्लास को एंड करना चाह रहा था ना, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये काम कर रहे हैं, सही है। तो मैं आपको ये लिंक जो है मैं आपको भेज रहा हूँ, कमिंग क्लास में हम इसी से शुरू करेंगे, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अभी आपको अटेंडेंस वगैरह मैं दे देता हूँ, ठीक है, अटेंडेंस वगैरह मैं आपको भेज देता हूँ, फिर हम एक बड़ी सी क्लास रख लेंगे आगे,
आपको प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ये बोलिए। अगर आज के दिन हम जल्दी ऑफ कर दें तो मसला तो नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ पे ये काम कर रहे हैं ना असल में मेरे ऑफिस में। दैट ओके? चलो चलो सर रिजॉइन कब करनी है क्लास? अब नेक्स्ट वीक ही करेंगे, भी तो काम करेंगे ना बैठ के। ठीक है, मैं चीजें आपको Okay, बता sir. दी, काफी चीजें बता दी। यहाँ पे स्लाइड नंबर कौन सा है ये आप देख लीजिए। यहाँ पे स्लाइड नंबर है 13वीं स्लाइड है, 30 स्लाइड है हमारे पास, इसको हमने स्टडी किया हुआ है। ये सारे के सारे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है और हम इसको बहुत डिटेल में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें 4 चीजें होती हैं। बताओ पहली चीज क्या होती है? ट्रू, करेक्ट, कंप्लीट एंड नॉट मिसलीडिंग। ठीक है, ये चारों चीजें होती हैं तो वो बंदा भाग नहीं सकता कहीं पर। सही है, वो कोई उसको डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कीड़े निकाल नहीं सकता वो। ठीक है, चले ऑफ करें इस चीज को। ठीक है बेटा, भाई बता दो। ओके, चलो जबरदस्त, हम इसको ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको मजीद डिटेल के अंदर इसको स्टडी कर लेंगे। आपके पास मैंने कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।